नमस्कार, मैं नैन्सी बजाज। स्वागत है आपका धरती से शिखर तक प्रोग्राम में। तो आज मैं ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रही जो नीचे लेवल से डायरेक्टर लेवल तक पहुंचे। मेरे साथ है मिस्टर अशोक कुमार भारी जी। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे धरती से शिखर तक प्रोग्राम में। थैंक यू, इट्स माई प्लेयर टू बी हियर। सर, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। आई एम अशोक बाहरी, सन ऑफ मिस्टर रामलाल बाहरी एंड मिसेस पुष्पा देवी। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए आपका बचपन कहाँ हुआ और अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मेरा जन्म आगरा में हुआ और आगरा में हम सिर्फ 6 महीने रहे। उसके बाद हम लोग अम्बाला शिफ्ट किए, अम्बाला से आदमपुर और अल्टीमेटली हम लोग जलंधर सेटल हुए। मेरे फादर मिस्टर रामलाल बाहरी और मिसेस पुष्पा देवी बाहरी मदर। We are 4 brothers and 1 sister, and I got one daughter also. We came from a middle family, and we had a very struggleful life. My father was a MES employee, and he had to struggle a lot to earn money, and he was doing part-time jobs all the time. But though he was not very educated, but he was very hardworking, committed, self-disciplinarian and hard worker. तो सर, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। I did my schooling from DSSC High School, Bastino, Jalandhar. I cleared matriculation in 1966. After that, I did my prep and then BA second year in Jalandhar. In 1970, I shifted to Sonipat and I did my final from Sonipat. In 1985, there was an ad in the paper that IGNOU has started a distance learning program for MBA HR. I got admission and I cleared my diploma, advanced diploma in management, and ultimately I got the degree of MBA HR. I was amongst the first 100 students who got MBA HR degree. तो सर, आप अपनी सर्विस कैरियर के बारे में बताइए। आपने फर्स्ट जॉब कहाँ की? In 1966, when I cleared my matriculation, I got admission in secretarial course, and along the secretarial course, I did a job of proofreading with one Mr. Shrivastava. He was paying me a salary of only 45 rupees, but I learnt a lot from there. Since I was doing proofreading of English books, my English became very strong, especially my grammatical English and spellings. After that, I joined Amichand Bholanath as a secretary, and almost after 2 years, I moved to Sonipat to join Atlas Cycle Industries. My ultimate aim was to move to Delhi. So in 3 months, I used to go for a lot of interviews and move to Delhi in 1970. I joined Manavasi Consultants as executive assistant, and from there I moved to Oberoi Hotels as secretary again to the general manager in Oberoi Maidens, Delhi. I worked there for almost 1 year. Then we opened a hotel in Oberoi Palace in Srinagar, so I moved there. I stayed there for 1 year, and from there I came back and moved to Tanzania because we had opened a hotel in Zanzibar by the name of Hotel Yabawani. Though I had gone there for 2 years, but I stayed there only for 6 months, and I decided to come back to Delhi. In Delhi, in 75, I joined Bharat Heavy Electrical, which is a public sector undertaking, again as secretary. I worked there for almost 7 years, but I did not see any opportunity for growth. I decided to move to the private sector, and luckily I got an appointment from Midwak SCRL, Baghdad, Iraq, as a HR plus administration officer. I worked there for almost 2 years and earned the money which I had decided to earn as my objective. I came back and joined Manavasi Consultants again as HR and administration officer. After working for a few months, I got an opportunity to work with a very reputed organization, Wipro Limited.
At that time, nobody heard the name of Wipro in North India. I joined there again as secretary cum administration officer plus. But because of my hard work, since I used to help every chief CEO of almost all the Wipro subsidiaries, so I became very popular and I got admission in MBA HR while working in Wipro. So entire amount which I spent for MBA HR plus the books, it was reimbursed by Wipro. Plus they gave me an opportunity to work as a HR person, HR executive in Wipro Biomed, which is the only business unit of Wipro in Delhi. I worked there for almost 3-4 years and I rose to the level of manager. Then there was a requirement for me to shift to Bangalore for further growth. Since I decided not to move out of Delhi to Bangalore for further growth in Wipro, तो टेलीकॉम सेक्टर बूम पे था उस समय, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली पेजिंग HFCL में, उसके पेजिंग कंपनी में एज ए DGM HR, और इसमें मुझे डबल प्रमोशन मिली। विप्रो में मैनेजर था और यहाँ हमने एक स्ट्रेटजी बना के जो मेरे फादर के साथ डिस्कस किया, उस स्ट्रेटजी के बाद मुझे एक डबल प्रमोशन मिल गई। 1 साल में मैंने इतनी मेहनत की कि मैनेजमेंट ने मुझे DGM से GM प्रमोट करने के लिए डिसीज़न लिया। जो पहले दिन जब मेरे बॉस ने मुझे बोला कि आपकी प्रमोशन हो रही है, तो मैं हंस रहा था। मैं क्या छिरा साहब जो मेरे बॉस है कि आप क्यों मजाक कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल में कहीं प्रमोशन होती नहीं DGM पे GM। तब उन्होंने मेरी अप्रेजल दिखाई जिसमें मेरे जो जॉइंट वेंचर पार्टनर थे मिस्टर आतिफ रितापौन, उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा था कि इस इंसान ने इतनी मेहनत करके मोबाइल और एज वेल एज पेजिंग दोनों को लॉन्च किया है 7 सिटीज़ में, तो इसलिए ही डिजर्व नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन। उसके बाद जब रेड हुआ हमारे HFCL में, तो आई डिसाइडेड टू स्विच ओवर टू अनदर कंपनी। सो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, ये इटालियन कंपनी थी विद इंडियन जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप विद DCM ग्रुप। सो आई जॉइंड देम एज अगेन GM HR। आफ्टर 1.5 ईयर डिसीज़न ये हुआ कि हम लोग सब लोग शिफ्ट करेंगे मनेसर मेरे घर से अराउंड 55 किलोमीटर्स था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 55 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करूँगा। सिंस आई हैड गुड रिलेशन विद मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन दिल्ली, so because of the ethical value system which I learned from Wipro and I was following there, so मुझे उन लोगों ने नेक्स्ट ही अपॉर्चुनिटी दे दी DSS Mobilink में। DS Mobilink I joined as again GM HR, और वहाँ पे तकरीबन 2 साल मैंने काम किया। बट फाइनेंशियल क्रंच की वजह से मुझे डिसीज़न लेना पड़ा कि, और मैंने ज्वाइन किया कंट्रोल एंड स्विच गियर्स इंडिया लिमिटेड एज वाइस प्रेसिडेंट HR। वहाँ से 5 साल मैंने काम किया 2003 से लेकर 2008 तक, और इसमें मैंने ग्रोथ भी देखी, और उस कंपनी को हम लोगों ने मिलके जॉइंट एफर्ट से 137 करोड़ से 800 करोड़ तक लेके आ गए। बट फिर कोई प्रॉब्लम हुई वहाँ पे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। आई जॉइंट भारत BPO, द चेयरमैन मिस्टर परवीन कुमार मेरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर बारी यहाँ आप क्यों नहीं ज्वाइन करते, तो मैंने उनको ज्वाइन किया था वाइस प्रेसिडेंट HR। वहाँ पर 1.5 साल काम किया। वहाँ फिर फाइनेंशियल क्रंच हुआ इस इंडस्ट्री में, तो मुझे जैक्सन इंडिया में एज ए वाइस प्रेसिडेंट HR ज्वाइन किया। जैक्सन वालों को मैं पहले भी हेल्प करता था, क्योंकि मेरा फ्रेंड वहाँ डायरेक्टर थे, तो इसका मैं कुछ चार्ज नहीं करता था। इसके बाद 4 महीने वहाँ जब मैंने काम किया, बहुत मेहनत की, मैनेजमेंट वाज वेरी वेरी हैप्पी विद मी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कलकत्ता जाने की और श्रीलंका जाने की। तो मैंने शिफ्ट किया यहाँ से कलकत्ता से हमें नया प्रोजेक्ट मिला हम्बनटोटा में, तो मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे, और कुछ देर कलकत्ता रहने के बाद हम लोग श्रीलंका शिफ्ट कर गए। और श्रीलंका में हमारा जो प्रोजेक्ट था हम्बनटोटा में था, और हम लोग स्टे करते थे कोलंबो में, और वहाँ पर मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी लैंड प्रोक्योर की वहाँ से, काफ़ी अप्रूवल्स ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, और काफ़ी अप्रूवल्स ली। बट अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका में फाइनेंशियली दे वर वेरी वीक,
और हम लोग 750 करोड़ रुपीज़ ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, तो मुझे वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। मैं वापस दिल्ली आ गया 2012 में। जब मैं वापस दिल्ली आया तो जितने मेरे फ्रेंड्स थे यहाँ पे, पता लगा कि वो चेयरमैन बन गए हैं रियल एस्टेट कंपनीज़ के। तो सभी के साथ पहले कॉस्मिक इंडिया में जो चेयरमैन था मेरा फ्रेंड था, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एज एडवाइज़र HR, और हाफ डे वहाँ जाता था। और दूसरा एक चेयरमैन था सेठी बिल्डवेल में, मिस्टर चंद्र सेठी, वहाँ भी मैंने ज्वाइन किया एज एडवाइज़र HR। और एक और कंपनी थी AMTL, वो भी मेरा चेयरमैन व फ्रेंड था, वहाँ भी मैं हफ्ते में 2 दिन जाता था। ऐसे एट ए टाइम में 3 कंपनी का एडवाइज़र था। पर जब मैंने देखा कि उनका जो सिस्टम था अनएथिकल था, लोगों से पैसा तो लेते थे पर कंस्ट्रक्शन पे नहीं लगाते और डाइवर्ट करते रहते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ काम नहीं करूँगा, बिकॉज एथिकल वैल्यू सिस्टम जो मैंने विप्रो में सीखा था उसको ध्यान में रखते हुए जब मैंने छोड़ा तो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। उसमें आई मेट प्रवीण कुमार अगेन। तो ही वॉज रनिंग हिज ओन कंपनी, उसके लड़के को एक कंपनी चला के दी थी उन्होंने, पायलट फिश इंडिया लिमिटेड। उसमें ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट 10 कंट्रीज इन अफ्रीका और 9 सिटीज़ इन इंडिया थे। आई जॉइन दैट कंपनी एज ए CEO, और उसमें तकरीबन 1.5-2 साल काम किया और हमने बहुत अच्छा काम किया अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी। तो जो मेरे फ्रेंड थे मिस्टर प्रवीण कुमार, मुझे कहने लगे कि आप नाइजीरिया शिफ्ट करिए, क्योंकि हमारा वहाँ टारगेट है 3 साल में 5 करोड़ करने का। तो मैंने डिसाइड किया नाइजीरिया इज़ वेरी वेरी रिस्की सिटी, वेरी डेंजरस सिटी। आई डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। और उसके बाद फिर मैंने काम करना किसी के लिए छोड़ दिया। देन आई बिकेम कंसल्टेंट टू 2 कंपनीज। वन इज़ मंचूर इंडिया लिमिटेड, दे आर इनटू रोपवे बिजनेस, और सेकंड इज़ क्रायोगैस मूवर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दे आर इनटू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ nitrogen gas tankers from plants to the end consumer. Currently I am advising them for their HR policy system, business expansion and diversification, with the only aim of reaching double target of their current volume. सर ने अभी तक अपनी जॉब्स के बारे में बताया, अब जानते हैं सर से कि सर डायरेक्टर लेवल तक कैसे पहुँचे और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली कठिनाई तो लाइफ में अर्ली स्टेज में आ गई कि जब मैंने मैट्रिकुलेशन किया उस समय मेरे फादर ने कह दिया कि मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको आगे नहीं पढ़ा सकता, आप खुद जॉब करिए और खुद पढ़िए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। उसके बाद मैंने जॉब करनी शुरू की और साथ में मैंने 1 साल का गैप जरूर पड़ा। उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन में आगे बढ़ना शुरू किया, प्रेप की, उसके बाद BA फर्स्ट ईयर जलंधर में की, सेकंड ईयर आकर सोनीपत की, और फाइनल के लिए मुझे यूनिवर्सिटी ढूंढनी थी अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके लिए मुझे बहादुरगढ़ जाना पड़ा। जॉब मेरी थी ग्रेटर क्लास दिल्ली में, और बहादुरगढ़ मेरे यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर था, ज़्यादा 50 किलोमीटर। और मैं सुबह 5:30 बजे पहली बस पकड़ता था बहादुरगढ़ से, और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैं पहुंचता था ISPT। फिर दूसरी बस लेके मैं रेड फोर्ट पहुंचता था, और वहाँ आके मुझे कुछ खाने को टाइम मिलता था। और उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचता था ग्रेटर क्लास में, जिस जर्नी में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे, और जाके मैं ऑफिस में चाय और बटर टोस्ट लेता था। तो ये डिफ़िकल्टी मुझे आई अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैं बड़ा क्लियर था कि मुझे एजुकेशन हर हालत में कंप्लीट करनी है, कुछ भी हो। उसके बाद जब मैंने लोगों को देखा आगे बढ़ते हुए, तो मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट था, तो लोगों ने MBA की हुई थी, अच्छे क्वालिफाइड लोग थे, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो लकीली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, इग्नो ने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम 1985 में स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन ये था कि उसका खर्चा कौन करे, तो हमारी विप्रो की पॉलिसी ये थी कि जो भी आदमी आगे पढ़ेगा उसका पूरा खर्चा मैनेजमेंट देगी, प्लस किताबों का खर्चा भी उन लोगों ने दिया। इसमें मेरे जो बॉस थे मिस्टर रिचर्ड जैन, बहुत हेल्प किया उन लोगों ने। इसके बाद प्रॉब्लम्स और बड़ी आई लाइफ में। मैंने BHEL ज्वाइन की 1975 में, पर BHEL में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी और मेरे में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था।
तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये जॉब करनी ही नहीं है, इसको छोड़ कर प्राइवेट सेक्टर में जाना है जहाँ ग्रोथ की रिस्पेक्ट हो। पर मैंने BHL में साथ में एक साइड बिज़नेस शुरू कर दिया मिक्सीज़ का, जो मेरे फादर ला ने मुझे सिखाया था। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से उस बिज़नेस को करता था, सारी दिल्ली कवर करता था, ईस्टली कवर करता था, करोड़वा कवर करता था। और ऑफिस में मिक्सी रखता हूँ, उनको बोलता था कि देखो मैं तो जॉब तो करनी नहीं है, आपने कंप्लेंट करनी कंप्लेंट कर दो, या आप मिक्सी चाहिए तो मिक्सी यहाँ से ले जाओ। खैर चलता रहा। फिर अल्टीमेटली मुझे इराक में जॉब मिल गई एट ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऑफ द सैलरी। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं उसको 2 साल में, जो BHL में 20 साल में सर्विस करने के बाद सेव करूँगा, उसको मैं 2 साल में इराक में सेव करके वापस आ जाऊँगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा रिस्क लिया। मेरे हर फ्रेंड ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, मेरे रिलेशन ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में क्यों जा रहे हैं। पर आई टुक ए डिसीजन। मुझे पता था जो BHL सैलरी देती है मैं कहीं भी कमा सकता हूँ। इराक में जब हम पहुँचे 1 साल तक तो सब ठीक रहा। 1 साल के बाद जब मैं वापस छुट्टी आया और छुट्टी से वापस वहाँ गया, तो 1 महीने के बाद मेरे बॉस को सैक कर दिया गया। जब सैक हुआ तो 800 इंडियंस और 800 पाकिस्तानी मेरे घर आ गए। तो कहने लगे कि भाई साहब आप भी पैक कर लो, क्योंकि कल सुबह आपको टिकट मिल जाएगी। तो आई वॉज लिटरली शिवरिंग कि कैसे होगा ये, क्योंकि मैं सब लोगों को बोल के, सब लोगों ने मुझे मना किया था, रिलेशन ने मना किया था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो नेक्स्ट डे जब मेरे बॉस मिस्टर सलीम साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहने लगे कि मिस्टर बारी क्या हाल है, तो आई लिटरली शिवरिंग कि अब ये मुझे टिकट पकड़ाने वाले हैं, मैं वापस इंडिया जाऊँगा। बट मिस्टर सलीम साहब ने एक इंसिडेंट बताया कि मिस्टर बारी, जब मिस्टर अबू कंटूस जो मेरे पहले बॉस से जब वो छुट्टी गए थे लास्ट ईयर, आपने 1 महीना उसके डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंटली हैंडल किया था, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आज आपको इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाते हैं और आपको बड़ा ऑफिस देते हैं और आपको सैलरी भी बढ़ाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो बताओ। तो दैट इज़ द मोस्ट रिस्की इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ। यदि मेरे साथ हो जाता, मुझे तो कोई चिंता नहीं थी, मैं आगे उतना पैसा कमा सकता था, पर जो रिलेशंस की, फ्रेंड्स की बातें सुननी पड़ती, उससे मैं बच गया। ऐसे ही जब मैं वापस इंडिया आ गया तो मिस्टर मुकेश अग्रवाल, हु अल्टीमेटली मैरिड रेखा एंड ही कमिटेड सुसाइड, उनके साथ में रहा कुछ 5-6 महीने। बट उनके साथ जो सबसे बड़ी चैलेंज है, शाम को 5 बजे आते थे और रात को 11 बजे तक काम करते थे, और रात को रोज़ मैं लेट जाता था, 12 बजे घर जाता। उस समय यमुना विहार रहता था। तो अल्टीमेटली मुझे बोलना पड़ा मुकेश जी को, मैं कि आपने शादी करनी नहीं और मेरा डिवोर्स हो जाना है, तो इसलिए मैं छोड़ दिया। उनको छोड़ा और मुझे विप्रो में एक अच्छी जॉब मिल गई, और विप्रो इज़ वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनी है। वहाँ पे चैलेंज सिर्फ यही था कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। आगे बढ़ने के लिए फिर मुझे लकली MBA किया, मैं आगे बढ़ा। और MBA करने के बाद जो विप्रो से मैंने एथिकल वैल्यू सिस्टम सीखा कि किसी भी इंसान को ब्राइब देने की जरूरत नहीं। मैं 10 साल 4 महीने रहा, 10 साल 4 महीने में 1 नया पैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब नहीं किया और सारे काम करवा के लाते थे। और चेयरमैन हमारे कहते थे देखो आप 5 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, कन्विंस मैं दूंगा, सैलरी मैं दे रहा हूँ, आपको एक पैसा देना नहीं। और आप उनसे बोलते रहना कि देखो आप नहीं करोगे, 5 बार जाओ, 6ठी बार उसके पास के पास, 7वीं बार उसके पास के पास, ऐसे करते हमारे काम होने शुरू हो गए। जब भी हम जाते थे कहते हुए देखो इन्होंने पैसे तो देने नहीं, और कंप्लेंट कर देंगे बैठे इनका काम कर दो। तो इसमें हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया हमारे में कि हम लोग बिना पैसे दिए इंडिया में काम करवा सकते हैं। उस कॉन्फिडेंस लेवल्स का बेनिफिट ये हुआ कि विप्रो का जब टैग मेरे साथ जुड़ गया तो मैं टेलीकॉम सेक्टर में गया, तो वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम हुई जिससे मैंने डबल प्रमोशन मिल गई, मैं मैनेजर DGM ज्वाइन किया। पर पहले 3rd 4th डे में मेरे बॉस ने कहा कि मिस्टर बारी कल से आप ट्रैवल करेंगे अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, 4 लोकेशन में, और आपने टीम में बनानी है। और मज़े की बात यह है कि जो HR हेड जिसको मेरे से पहले था, उसको वो छोड़ के जा रहा था, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सब मैंने बहुत कोशिश की, उसके बाद नहीं बताया। अल्टीमेटली मुझे जो टेक्निकल डायरेक्टर था उसके साथ 10 मिनट बैठा और उसके मैंने पूछा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बेस के ऊपर जब मैं अहमदाबाद लैंड किया, वहाँ एक बहुत ही शातिर आदमी था GM। जब मैं वहाँ पहुँचा तो कहते हुए आपका पुराना साथी कुछ हेल्प नहीं कर सका मेरी, तो आप क्या कर लेंगे। मुझे याद है मैंने उसको बोला PK, यदि मेरे साथ जब तक मैं बैठूँ आप बैठोगे तो आपकी टीम बना दूंगा, नहीं तो मैं उठ के चला जाऊँगा, आप अपनी टीम बना देना।
सुबह 9 से लेकर रात को 12 तक हम बैठते थे अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, और हमने एक हफ्ते में पूरी 4 ऑपरेशंस को स्टार्ट करके मैं वापस आ गया और ऐसे बॉम्बे कलकत्ता हुआ। बॉम्बे में एक और इंसिडेंट हुआ कि एक हमारे चेयरमैन थे, उनका कोई ख़ास रेफरेंस से लड़का था, उसने बहुत पैसा कमा रहा था अनएथिकल वे से, सब लोग कंप्लेंट कर रहे थे और मुझे भी कहा कि मिस वारी ये आदमी ऐसे कर रहा है और ये चेयरमैन का आदमी है, इसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा कोई बात नहीं। मैं वापस वहाँ से उसको फॉलो किया, मैंने डिटेक्टिव एजेंसी से वीडियो बनवाई। वीडियो बना के मैं जब वापस दिल्ली आया तो मैंने अपने एमडी को दिखाई। एमडी वाज वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ HFCL। तो जब दिखाई वो कहते हैं इसको डिसीजन कौन लेगा। मैं कहा डिसीजन तो आपको लेना है, मैंने नहीं लेना, मैं तो आपको सच्चाई बता दी है। अल्टीमेटली हमने ये चेयरमैन को बोल के डिसीजन लिया उसको दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। जब दिल्ली ट्रांसफ़र किया वो उसने एक गैंग बना लिया जिसमें लड़कियां सेल्स का आदमी था। गैंग बनाने में उसने हमें हर जगह टोकना शुरू कर दिया, मैंने उनका तंग करना शुरू कर दिया और एक स्टेज ये आई कि उसने अपने को 1-2 स्टाफ से रिज़ाइन करवा दिया। तो मेरे एमडी कहने लगे बारिश क्या करोगे। तो मैंने कहा आप छोड़ दो मेरे पे, आप 12 बजे तक उस ऑफिस में नहीं आओगे जनकपुरी में, डॉक्टर मल्होत्रा को मैंने बोला। तो सबसे रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिए, रातों रात मैंने उनके फुल एंड फाइनल सेटमेंट एक्सेप्ट बना लिए थे। 7 आदमियों को उसी दिन टर्मिनेट किया। जब टर्मिनेट हो गए 7 आदमी, उसके बाद वो आया वहाँ पे और उसमें ये पेजिंग इंडस्ट्री में एक तहलका बच गया कि 7 आदमी एट ए टाइम इंक्लूडिंग DGM से सेट किए गए। तो बहुत बड़ा टफ डिसीजन था मेरे लिए, अकेले उसे मैनेज करना, और हमारे डायरेक्टर साहब थे वो उनको मैं मना कर दिया था आने के लिए। ऐसा ही एक और डिसीज़न हुआ। ऐसे काफ़ी इंसिडेंट लाइफ में है मेरे, जैसे बड़े टफ डिसीजन लेने पड़े। ऐसे ही एक और डिसीज़न मुझे बड़ा टफ डिसीजन लाइफ का सबसे टफ डिसीजन वही होगा। एक लेडी थी, वो वहाँ के CM के रेफरेंस से और वहाँ से हमारे चेयरमैन के रेफरेंस से एज ए मीडिया हेड ज्वाइन किया उसने, पर उसका स्टाइल ये था काम नहीं करना और दूसरों से अच्छे रिलेशन बना कर रखना, और स्पेशली हमारे MD और चेयरमैन से। सब लोग मुझे कंप्लेंट करने लगे कि भाई साहब ये तो लेडी काम ही नहीं करती, हमारा नुकसान होना शुरू हो गया। स्लोली मैंने मीटिंग्स में इशू को रेज़ किया। हमारे एक रीजनल हेड्स की मीटिंग होती थी, तो मैंने MD को बोला मैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, सब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। उस लेडी को वार्न किया गया, पर उसने फिर भी काम करना ठीक नहीं किया। अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया गया मैनेजमेंट की तरफ से कि इसको जाने के लिए बोलना है। अब जाने के लिए बोले कौन? मेरी जॉब थी ये कि डिसीजन तो मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो डिसीजन ये हुआ कि डायरेक्टर साहब से साइन करवा के मैं पेपर ले गया और वहाँ जाके उस लेडी को बुलाया। वो हम लोग हॉलीडे इन में थे, उसमें हमारा ऑफिस था। हॉलीडे इन में सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक मैं उसको यही बता सका कि आपका जो काम है किसी को पसंद नहीं है, आपकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, और इवन कि आपके MD भी आपको नहीं पसंद करते समय। 2 बजे से लेकर फिर 4 बजे तक, 4:30 बजे तक मुझे उसको ये कन्वे करना पड़ा, नो द टाइम हैज़ कम, योर गेम इज़ ओवर एंड यू हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैंने ये बात कही तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी समय उसकी सेक्रेटरी बाहर बैठी, उसको मैंने अंदर बुला लिया। शाम को 5 बजे तक ये चलता रहा। तो कहती कि मैं तो रिज़ाइन नहीं करूँ। मैं कहा देख 2 ऑप्शन है, रिज़ाइन करो या टर्मिनेशन। मैं नहीं चाहूँगा कि आपके लेवल के ऊपर आदमी रिज़ाइन करे, टर्मिनेट हो, तो आप रिज़ाइन कर लें। उसने मुझे थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि मैं देखती हूँ आप कैसे छोड़ के जाएंगे अहमदाबाद। और मैंने कहा खैर वो तो अलग बात है, जैसे जाऊँगा, पर आपको ये टर्मिनेशन, आपको मेरा लेटर एक्सेप्ट करूँ। कहते मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं कहती कोई बात नहीं, मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, मैं कोरियर भेजूँगा आपके घर में। कहती मैं कोरियर वाले को मना कर दूँगी, आप क्या कर लोगे? कोई बात नहीं, मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, आपके गेट के ऊपर वे लेटर चिपका देंगे दैट यू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द कंपनी एंड नोबडी ऑन दिस अर्थ विल डील विद यू। कहती उसकी टांगें मैं तोड़ दूँगी। अच्छा कोई बात नहीं। मैं क्या मेरे पे एक लास्ट हथियार है जो आपके नुकसान में, आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है। मैं क्या यहाँ से जैसे मैं जाऊँगा नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में सारे गुजरात में आ जाएगा कि आप सैक कर दी गई हो और आपसे कोई डील नहीं करेगा। क्या बचा दें? कहते मिस्टर बारी किसी की हिम्मत है ये कर सके? कोई बात नहीं। मैं अच्छा कल मिलते हैं।
मैं रात को मेरी फ़्लाइट मैंने वापसी बुक की थी, मैं शाम को वापस आ गया और उस लेडी ने टर्मिनेशन लेटर दिया नहीं था और मुझे अल्टीमेटली पोस्ट करना पड़ा। वो लेडी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे उस लड़की को बुलाना, उसके सेक्रेटरी को अंदर बुलाना पड़ा, उस होटल के स्टाफ को भी बुलाना पड़ा ताकि किसी किस्म का ब्लेम वेम ना करे। तो ये मेरे ख्याल लाइफ में सबसे टफ डिसीजन था। ऐसे वो डिसीजन भी हुए, ऐसे वो डिसीजन हुआ जब मैंने ग्रुप 4 सिक्योरिटी ज्वाइन किया, आई जॉइंड एज ए डायरेक्टर HR। तो जिस इंसान ने मेरी इंटरव्यू ली थी, मिस्टर लखनऊ खान, जब मैं पहले दिन ज्वाइन किया तो हम लोग सुबह मिले 9 बजे 9:30 बजे। तो कहने लगे कि इस बारे में मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस बुलाया गया, आके मिलते हैं। तो ठीक है। शाम तक वो आया नहीं और मुझे मेरे कमरे में कोई 4 बजे हमारा एक MD था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उसकी सेक्रेटरी आई कि मिस वारी आप आज घर चले जाइए क्योंकि हमें ये पेस्ट कंट्रोल करना है। मैं कहा अच्छी बात है, पेस्ट कंट्रोल करना है, कल भी हो सकता है, आज मेरा पहला दिन है, कहते आज ही करना है, आप घर जाइए। मैं वहाँ से उठा, मुझे डाउट हो गया कि ये कोई गड़बड़ है। मैं वहाँ से निकला तो मिस्टर गन को अप्रोच किया मैंने, तो पता लगा वो एयरपोर्ट पे थे। मैं क्या गन आप एयरपोर्ट पे कैसे? कहते भाई मैं वापस जा रहा हूँ, मेरी इस मैनेजमेंट से बात नहीं बनी, मैं वापस चला गया। अगले दिन जब मैं वापस आया तो वही जो MD जिसने उसको जो इंस्ट्रूमेंटल था उसको चेक करवाने में, मुझे कहने लगे मिस वारी तो आपको पता है कि मिस्टर गन वापस इंग्लैंड चलेंगे? मैं कहिए सर आई एम अवेयर ऑफ दैट, बट सर आपने मेरी फाइनल सिलेक्शन तो आपने की थी, अब मुझे ये बताइए मुझे किसको रिपोर्ट करनी है, मुझे क्या करना है? ये कॉन्फिडेंस से यदि मैं नहीं बोलता तो उस दिन ये डिसीजन था उसका मेरे ख्याल में कि मिस वारी आप ही वापस चाहिए। तो उसको मैंने बोल्डली हैंडल किया क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल जो मेरे में आया था, जो विप्रो मैंने सीखा और बाकी टेलीकॉम सेक्टर से सीखा हमने, जो कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से उसमें सर्वाइव कर सका। और उसके बाद फिर मैं वहाँ तकरीबन 2 साल रहा। जब वो शिफ्ट किए गुड़गांव में महिपालपुर से, तब मैंने रिज़ाइन किया। जब मैं जलंधर से दिल्ली आया तो दिल्ली में मुझे कोई भी ऐसा इंसान हमारे रिश्तेदारों में ऐसे नहीं था कि वो मुझे कोई हेल्प कर सकता हो, तो मुझे खुद ही डिसीजन लेने पड़ते थे, खुद ही उसको सक्सेसफुल होना पड़ता था। तो उसमें एक डिसीजन लेने की एक बहुत अच्छी पावर मेरे में आ गई। फिर उसके बाद मुझे जैसे जैसे मैं आगे कंपनी में बढ़ता रहा, PHL में मुझे लगा कि मेरा कैरियर इतना अच्छा नहीं हो सकता, तो मैंने डिसाइड किया कि एक रिस्की डिसीजन लिया कि वहाँ छोड़ के मैं इराक़ चला गया। जब इराक़ से वापस आया तो मुझे विप्रो कंपनी मिली। विप्रो में जब एथिकल वैल्यू सिस्टम देखा और लोगों ने बोला कि आप 5 बार जाइए काम करवा के लाइए, हम काम करवाने में सफल हो गए, तो वहाँ से हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे करते करते जब मैं आगे बढ़ा, एजुकेशन गया, तो जैसे जैसे मैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में मैं इन्वॉल्व हो गया, वहाँ में MBA HR होने के बावजूद मैं PhD के एक पेपर सेट करता था, एथिक्स इन मैनेजमेंट। जो वहाँ के डायरेक्टर थे, मेरे अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की ऐसी चीज़ इन्वॉल्व करने के लिए। नॉट ओनली दैट, विप्रो की बैकग्राउंड की वजह से मुझे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि जितने निफ्ट के एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो दिल्ली में हो, जम्मू में हो, कलकत्ता में हो, मदुरई में हो, तो मुझे वो भेजते थे एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, कि उनके लिए एक बड़े रिलायबल आदमी की ज़रूरत होती है जो एथिकल वैल्यू सिस्टम से आया हो, ताकि पेपर लीक जब हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे वो असाइनमेंट मिली, उससे मेरी नेटवर्किंग बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद मैं HOD नेटवर्क में काफ़ी सक्रिय हो गया। वहाँ मैं फ्रंट लाइन पे नहीं आता था, बट बैकग्राउंड में मैं रहता था हमेशा, क्योंकि जॉब भी करनी होती थी। तो वहाँ मुझे लोगों से मिलने का, कॉर्पोरेट लेवल के सीनियर लोगों के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के थे दिल्ली के, उनसे मिलने का मौका मिला। तब मेरे में इच्छा पैदा हुई कि यदि ये लोग इतना ग्रो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ग्रो कर सकता। फिर मैंने जॉब स्विच ओवर करनी शुरू की। एक लेवल से, जैसे विप्रो से मैनेजर था, मैं DGM आया। DGM आने में भी काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ी जिसमें मेरे फादर ने बड़ी हेल्प की। उसके बाद जैसे डबल प्रोमोशन हो गई, तो जब मैं वहाँ से बेनेटन में गया, फिर बेनेटन से ग्रुप 4 सिक्योरिटी में गया, तो लकीली मुझे ये प्रमोशंस मिलती गई, मैं एक डायरेक्टर लेवल पे पहुँचा। पर इसमें मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन विप्रो कंपनी का रहा, और ख़ासकर जी मास्टर प्रेम जी का, जिसके साथ मैंने 10 साल 4 महीने काम किया।
वहाँ से उनका एथिकल वैल्यू सिस्टम सीखा, किसी को ब्राइब देनी नहीं, और हार्ड वर्किंग करना भी इनसे सीखा। मैं 12-12 घंटे काम करता था वहाँ पे। तो मुझे यही पता लगा कि जो इंसान एक नीचे लेवल से आता है, एक गरीब बैकग्राउंड से आता है, उसके पास एक ही हथियार है, वो हथियार है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, और लॉयल्टी टू माई प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन को लॉयल्टी देता था, किसी बॉस को लॉयल्टी नहीं देता था। ये चीज़ें सीखते सीखते हम लोग इस लेवल पे पहुँचे। मेरी ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूट किया मेरे पैशन ने, पैशन मुझे एचआर में था, काम करने का पैशन था, हार्ड वर्क करना हमने सीखा था कि मेरे फादर ने सारी ज़िंदगी हार्ड वर्क किया था। कमिटमेंट टू माई प्रोफेशन बहुत था, मैं एचआर के बारे में कोई अगेंस्ट सुन नहीं सकता था। और नेटवर्किंग मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। उसी नेटवर्किंग वजह से धीरे धीरे जैसे हम लोगों से मिलते रहे, कॉर्पोरेट एचआर वर्ल्ड में लोगों से मिलते रहे, मेरे में भी एक कॉन्फिडेंस आया कि यदि लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया। 12 घंटे काम सिर्फ सीखने के लिए करता था, अपने लिए, किसी के लिए नहीं। मैं सेल्फिश था कि मैं सीखूंगा कुछ, क्योंकि सिखाने वाला दुनिया में बहुत कम होते हैं। यह सिखाने के लिए एचआरडी नेटवर्क में हमारे एक मीटिंग होती थी मंथली, जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग 20, 25, 30 साल के एक्सपीरियंस वाले एक टॉपिक के आके बोलते थे। उस टॉपिक जो 20 साल का एक्सपीरियंस मुझे 45 मिनट में मिल जाता था, उससे मैं सीखता था, और मैं रेगुलर था, विजिटर था। और ऐसे जब मुझे आईएमए में पीएचडी का पेपर सेट करने के लिए मुझे कहा गया, तो मेरे से भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसने पीएचडी की नहीं है और पीएचडी का पेपर कई साल सेट किया है। तो धीरे धीरे ये चीज़ों ने मुझे, नेटवर्किंग ने बहुत काम किया इसमें, तो यही चीज़ें मुझे सक्सेसफुल लगी। और मैंने लोगों को सिखाया एचआर क्या होता है। लोगों को मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एचआर में लेके आया। एक नहीं, कई एग्जाम्पल है मेरे पास जो आज की डेट में मेरे से कम 4 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और वो कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आचार्य है, कोई डायरेक्टर लेवल पे पहुंचा हुआ है, जिनको ABC नहीं आती थी एचआर की, उनको मैंने सिखाया। धीरे धीरे फिर मैं एजुकेशन साइड पे आ गया। जितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इन लोगों ने मुझे इनवाइट करना शुरू कर दिया, चाहे वह जिम था, MIT था, एशिया पैसिफिक, शारदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे मथुरा में, IME, जितने इंस्टीट्यूट थे, सब लोगों ने मुझे इनवाइट करना शुरू कर दिया। मैं उनके इंटरव्यू पैनल का चेयरमैन होता था MBA स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए, और उनका एडवाइस रिपोर्ट होता था। तो ये नेटवर्किंग की वजह से हुआ। इससे धीरे धीरे मेरा भी रिलेशनशिप लोगों से बढ़ता रहा, और मुझे इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन मिलती गई। और मेरे से लकी कौन हो सकता है, एक जो आदमी सेक्रेटरी लेवल से स्टार्ट होकर डायरेक्टर लेवल तक पहुँच जाए, और श्रीलंका में उनके बोर्ड में भी था, और उसके बाद दिल्ली में आके मैं एडवाइज़र है 4 कंपनियों का, और एक कंपनी का CEO भी बना। मेरे ख्याल में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी या तो ग्रोथ किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। इसलिए आई फील प्राउड दैट एक सिंपल लाइफ से स्टार्ट किया, जलंधर से, छोटे शहर से स्टार्ट किया, वो आदमी अभी तक यहाँ पहुँच गया है। थैंक यू। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा एक ही सिंपल मैसेज है कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो मैंने सीखी हैं और मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा। एक तो है हार्ड वर्क, कमिटमेंट टू प्रोफेशन, लॉयल्टी टू योरसेल्फ एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, एथिकल वैल्यू सिस्टम, नेटवर्किंग। ये चीज़ें आज की डेट में बहुत ज़रूरी हैं। इसके बिना आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एजुकेशन भी होनी चाहिए, पर एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ें यदि आपके पास हैं, आपकी ग्रोथ को कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। इसके अलावा फास्ट डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली ऑफिस में क्या होता है, डिसीजन लेने में बहुत देर हो जाती है, और एक डिसीजन लिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने में उससे ज़्यादा देर हो जाती है। हमेशा यू हैव ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू लर्न टिल द टाइम यू आर अलाइव। उस लर्निंग फेज़ में आके जिससे आप सब लर्न करो, चाहे आपका मेंटर है, टीचर है, गुरु है, उसके रिस्पेक्ट करना सीखो। ड्यूरिंग माई जर्नी फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू द हाइएस्ट लेवल, there are few people who really helped in my life, and I am thankful to these people. I am thankful to Mr. Salim Sadeh, who was heading Mid-Mecca CRL in Iraq, who gave me an opportunity to head the department, even though at that time I was a very junior person. That gave me a lot of confidence, and it helped me in contribution also.
I am also thankful to Mr. K.V. Bagwadia, whom I call my HR guru, who really taught me what HR is. Mr. Bagwadia was my boss in Wipro. I am also thankful to Mr. D.A. Prasanna, who gave me the opportunity to head Wipro Biomed as a junior most system manager in Wipro. I am also thankful to Mr. Subhash Jagota and Mr. Dabas, who are senior HR professionals and my colleagues. I am also thankful to Suresh Jain, who really helped me in preparing my project when I was doing my MBA from IGNOU. I am also thankful to my colleagues who really helped me in contributing, people like Mr. Lokesh Kundra and Mr. Rajveer Dabas. I am also thankful to my HR colleagues, Mr. Siddiqui and many other HR colleagues. I have special thanks for Mr. Kamal Singh, who is no more with us unfortunately, but he was Director of All India Management Association, who believed me so much that he gave me the opportunity to conduct NIFT exams as well as to set question paper for PhD of IMA. I am also thankful to one of my relations, I won't name him, but he really taught me that I should never demand even a single penny from any of my relations or friends in my entire life, and I have been successfully following that, and for that I am really thankful to him. Thank you, sir, for coming our program Dharti Se Shikhar Tak. I am really thankful to Nancy and Mr. Ranveer Singh, who is heading Challenge News YouTube channel, who has given me an opportunity to share my experience and my achievements in life and convey a message to the young generation. Thank you very much.